Assalamu alaikum dear students. We are starting after a few days our recorded lecture of art and culture. I was busy in basically defense of my PhD thesis, and I was able to successfully defend it 2 days before, Alhamdulillah. And I will discuss my thesis later on in the Zoom class. Uh, so officially now I am PhD, and I will advise you after your undergraduation, those of you who want to join academia or they want to join some research, don't waste your time. Just apply for your MS or MPhil and then for PhD. But my personal view is that PhD, it is better that you gain some experience of teaching and then you apply for PhD. But I wasted a lot of time. I did my, you can say, MSc in 2005, and now I have completed my PhD. So don't take a long time. I'm a lazy person, you know that. So, my dear students, today we discuss functionalist perspective. ये हमारी कभी जान नहीं छोड़ेगा जब तक सोशियोलॉजी चल रही है. ये फंक्शनलिज्म, ये मार्क्सिज्म, ये हिस्सा रहेगा, इसलिए घबराना नहीं है आपने. So functionalist perspective on culture. Culture, as we discussed in perhaps the first lecture, that it is a naughty concept. It is a concept uh, which is difficult to grasp. Sometimes we feel that it is very easy concept, but it is one of the most difficult, uh, vague concepts. So, how culture started? This question is particularly uh, addressed by the famous, French sociologist who started academic sociology, Emile Durkheim. And I checked the pronunciation on a French website. It is Emile Durkheim, not Emile Durkheim, etc. But I never mind. But just to those of you who have this kind of, attitude that they should pronounce correctly, so it is Emile Durkheim. So Emile Durkheim and his nephew Marcel Mauss. Marcel Mauss is the French. Marcel Mauss, you can say whatever. Marcel Mauss, perhaps, is the French word. Marcel Mauss. He was the nephew of Emile Durkheim, and unlike other nephews, he was very helpful to Emile Durkheim. And unlike all other nephews, he was a very good anthropologist and sociologist. So he, they both basically conducted sometimes research together, and they joined hands in their publications. And they, so उनकी किताब का नाम तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा. So perhaps the primitive culture. So they discussed the origins of culture and how culture evolved. So basically, this is the fundamental question of sociology and anthropology. So they cross the boundaries between, and at this level, perhaps there are many areas, many questions in which we just cross the boundaries. Boundaries, whether boundaries are good, but sometimes they obscure the reality. So boundaries of concepts, boundaries of disciplines, boundaries of countries, whatever. So uh, they explored, they conducted research in on Australian Aborigines. Australian Aborigines, वहाँ पे उन्होंने जाके स्टडी की किसी आइलैंड पे. Why they chose Australian Aborigines? Because the assumption of the theme particularly is this, that we can understand the basic questions in a simple society. जैसे आप ये देखें कि इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैन, इंसान जो है, एक अडल्ट जो मर्द या औरत है, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकम कॉम्प्लेक्स. सो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मैन. इफ यू वांट टू स्टडी द नेचर ऑफ मैन, स्टडी चिल्ड्रन. क्योंकि अभी वो शेप में है और चीजें अभी बेसिक्स में है. सो इट वुड बी वेरी comparatively it would be easier
to study a child, and then you can have some insight on basic human nature. So they thought that the more, I mean, the simple society जहाँ पे बिल्कुल ट्राइबल सिस्टम छोटा सा है और लोग हैं और इंटरेक्शन है, so they just tried to study that. They just sought to study that so that they can understand the basics of a society. The more a society become complex, the more it would be, of course, difficult to study. So अच्छा, फिर इन्होंने एक ये बात नोट की, आपको ये बात पता है रहीम की जो बेसिक एजम्पशंस है, और वो इतनी स्ट्रांग है कि मजाल है जो रहीम साहब जो हैं वो कोई इस पे कंप्रोमाइज करे, और वो ये है कि सोसाइटी सब कुछ है, सोशल स्ट्रक्चर सब कुछ है, हर चीज जो है ना, न्यूक्लियस जो है वो सोसाइटी है, इंडिविजुअल की कोई उनके यहाँ, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो सारे का सारा डिटरमिनेंट हो रहा है, सोशल फैक्ट्स की प्राइमेसी है, रहीमियन जो सोशियोलॉजी है, और दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू प्रूव थ्रू हिज एम्फेसिस, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है कि सोसाइटी जो है ना यही सब कुछ है। और इवन जो उसकी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है उसमें वो कहता है कि पीपल एक्चुअली आर नॉट वर्शिपिंग गॉड, पीपल वर्शिप सोसाइटी। इस पे हम अभी बात करेंगे, इस जुमले को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में हमने ये डिस्कस किया था, इसको भी आज हम देखते हैं। तो वो ये कहता है कि ये कल्चर जो डेवलप हुआ है उसका जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ, यानी पहला जो यानी पॉइंट है, नुक्ता आगाज, ठीक है ना, ये भी अच्छा है, थोड़ी उर्दू भी यानी कल्चर का हिस्सा है जो कि हमारे, और उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके बोलना भी कल्चर का हिस्सा है, लिहाजा। सो पॉइंट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर कहाँ से, यानी नेचर से कल्चर की तरफ। सो एक इंसान अपनी ये समझ लीजिए प्राइमोर्डियल नेचर में है, ठीक है, बिल्कुल जैसे एनिमल्स है, फिर वो कल्चर जहां से शुरू होता है, द पॉइंट जहां से कल्चर शुरू हो रहा है, वो उन्होंने जो एज्यूम किया है, यानी एजम्पशन है उनकी, ये वो है कि व्हेन ह्यूमन माइंड डेवलप्स कैटेगरीज, व्हेन ह्यूमन माइंड स्टार्ट्स क्लासिफाइंग, जब वो चीजों के नाम रखता है, और आपको पता है इसकी मेटाफिजिकल अहमियत भी है, एडम जो है वो चीजों के नाम रखना है, मतलब उसमें इंसान के अंदर ये एक कैपेसिटी है कि ही कैन नेम जो है ना, ये सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है कि आपने किसी को टाइटल दे दिया। जब आप टाइटल देते ही आप तब हैं व्हेन यू थिंक दैट इट इज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर थिंग। अब वो लफ्ज जो है, लफ्ज तभी खड़े हैं ना, लफ्ज किस चीज पे खड़े हैं, जैसा कि वो हमारे सॉसर हैं स्ट्रक्चरलिज्म में, शायद हम पढ़े इस कोर्स में, वर्ड्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंस, डिफरेंस। यानी चेयर के लिए जो लफ्ज है, चेयर अलग एक चीज है, वो एक डिफरेंस है, वो टेबल नहीं है, वो बेड नहीं है, वो एयर कंडीशनर नहीं है, वो गाड़ी नहीं है, वो गेंद नहीं है, वो बल्ला नहीं है, वो चेयर है। यानी वो चेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। सो वी हैव ए वर्ड फॉर चेयर, राइट। सो इंसान का जो ज़हन है दैट कैन ग्रैस्प द डिफरेंस एंड गिव इट अ टाइटल, नेम इट। तो ये जो कैटेगरीज बनाता है वो, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कल्चर according to Rahim and Moose, according to Rahim and Moose। अब ये जो कैटेगराइजेशन की एबिलिटी है, मेटाफिजिक्स को हम छोड़ दें एक मिनट के लिए, मार्क्स तो रहीम तो मेटाफिजिक्स की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि ये सोसाइटी दे रही है, यानी ये नहीं है कि इंसान ये दे रहा है और वो उससे सोसाइटी बन रही है। आम तो लॉजिकली शायद ये हम समझें कि इंसान में ये इनहेरेंट एबिलिटी है एंड ही क्लासिफाइज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी, इंडिविजुअल एबिलिटी, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, यानी कॉमन सेंस ये लगती है, कॉमन सेंसिकल ये है। लेकिन रहीम जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि नहीं, ये अंदर से नहीं आ रही, ये भी बाहर से आ रही है, और बाहर से कहाँ से आ रही है, सोशल स्ट्रक्चर से आ रही है। सोशल स्ट्रक्चर खुद जो है वो स्ट्रेटिफाइड है, ह्यूमन सोसाइटी जो है वो ग्रुप्स में एग्जिस्ट करती है, उसकी लेयर्स हैं, उसके टीयर्स हैं, उसके ग्रुप्स हैं। तो सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं वो पहले हैं, वो इंसान पे असर डालते हैं, एंड देन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट कैटेगराइजिंग। तो इन्हें एक रिफ्लेक्शन है, सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन पड़ता है इंसान के जहन पे। सोसाइटी में ग्रुप्स कहां से आए, इस पे रहीम अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा, या इस पे बात नहीं करता। सोसाइटी को वो गिवन मानता है, सोसाइटी है, इंडिविजुअल से पहले है।
राइट, सोसाइटी इज देयर, सो इट इज गिवन। और सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं, तो अब उन्होंने इस तरह से स्टडी किया, यानी अपने थीसिस को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने व्हेन दे एक्सप्लोर डिफरेंट आइलैंड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स, तो उन्होंने देखा कि जिस ट्राइब का सोशल स्ट्रक्चर जो है दैट वाज बेस्ड ऑन टू ग्रुप्स, उस सोसाइटी में दो ग्रुप्स थे, मतलब कोई भी नाम रख लें, उसमें अफ्रीकन नेम्स है या ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स नेम लिखे हुए हैं, यू कैन जस्ट कोई नाम एक्स और वाई, दो ग्रुप्स हैं किसी सोसाइटी में। तो वो देख रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन दैट सोसाइटी पीपल वर डिवाइडिंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इनटू टू थिंग्स, यानी चांद है अगर वो एक्स है तो सूरज वाई है मिसाल के तौर पे। सो देयर क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज बाइनरी बिकॉज देयर सोसाइटी हैड टू ग्रुप्स। सो सोशल स्ट्रक्चर में दो ग्रुप्स थे, अमीर और गरीब मसलन, तो हर चीज लोग भी हर चीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे। फिर उन्होंने और सोसाइटी देखा, वहां पे चार थे, तो उन्होंने देखा कि वहां के लोगों की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें चार निकल आए। फिर उन्होंने देखा कि 12 एक सोसाइटी किया जहां पे 12 कैटेगरीज थी सोसाइटी के अंदर, एंड दे यानी क्वाइट एस्टोनिशिंगली दे फाउंड कि लोगों की जो कैटेगरीज है वो भी 12 ही है। सो दे फाउंड अ रिलेशनशिप। अब ये बड़ा यानी एक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ वंडर इसमें कि किस तरह से ये है। और उन्होंने कहा कि जो कैटेगरीज हैं वो सोसाइटल कैटेगरीज जो हैं, सोशल कैटेगरीज, सोशल ग्रुप्स, वो पहले हैं, और इंसान जो कैटेगराइज कर रहा है वो बाद में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो इसका रिफ्लेक्शन है। तो ये बुनियादी तौर पे इसका क्रक्स है इस थ्योरी का, और यहीं से फिर कल्चर डेवलप हुआ। तो एक तो ये बात है, कल्चर की जो बिगिनिंग है वो क्लासिफिकेशन से है और वो सोशल स्ट्रक्चर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कल्चर का जो ओरिजिन है वो इंसान नहीं है, यानी वो इंसान से बड़ा इंडिविजुअल नहीं है, उसका इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि उसका जो ओरिजिन है वो सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर इज द ओरिजिन ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू एमील दखीम। यहाँ पे हम बात खत्म करते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी बात शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।